Forbes India Leadership Awards. Hi, Shikhar. So great to have you for this. And Shikhar Dhawan doesn't need any introduction. गब्बर को तो सब जानते ही हैं. थैंक गब्बर यू. कौन सा गाना आप अभी गुनगुना रहे थे? You were singing something, right? हाँ जी, अभी मैं गाना गुनगुना रहा था. गजल है कौन सा? वो जगजीत सिंह जी की है कि तेरे आने की जब खबर मैं की. तो मैंने कहा आप कैमरा पे आए तो मैंने कहा गाना सुना देते हैं. नहीं, बहुत ही बढ़िया आप गा रहे थे. और शिखर, ये आपका क्या नया अवतार है, नया हेयर स्टाइल? एब्सोल्युटली सेंसेशनल. यू आर लुकिंग ब्रिलियंट. या मेरे को अब मेरे बाल ज़्यादा है नहीं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में आती रहती है. एंड आई डोंट शाई अवे फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स. एंड पहले मैं एक आधी लाइन बनाता था तो फिर मेरे एक बार दिमाग में आया कि यार ऐसी एक पूरी लाइन बनाते हैं. एंड आई एम लविंग इट एक्चुअली. या वो आपका रिवर्स स्कूप वाला कुछ स्टाइल मुझे शॉर्ट का लग रहा है कि यू हैव इनोवेटेड समथिंग एंड न्यू स्टाइल दैट यू हैव क्रिएटेड. हाँ जी, थैंक यू सो मच. So, Shikhar, how do you see yourself in that leadership role? How do you define the qualities of a leader? And what all are needed for that role? Feel ki as a leader has to be, very, very positive, strong person, and who knows how to control his emotions, because especially in panic situation, if you have calmness and you giving that energy to the team as well, you can think clearly and get the solution. And maybe you're gonna pass or you're gonna fail. That's a different ballgame. But at the same time, if you can think through tough situations, I find a lot of strength in that thing. And as a leader, I always pass on all my knowledge to the youngsters. I will give them that support rather than getting angry or upset, because I know that they're already feeling down within themselves. So it is very important for me to go and pat them and give them that confidence and lift them that time. For me, that is very, very important. And at the same time, being honest and being honest and communicating nicely to the teammates if whenever some hard decisions have been taken. So leader have to play that role as well, quite precisely. So all those things I feel makes me a good leader. लीडर को लीडर भी होना चाहिए, and you have always been fearless. लीडर को लीडर भी होना चाहिए, एब्सोल्युटली. बिल्कुल होना चाहिए. Yep, I've been fearless. Yep. Fearless for me means being smart, aggressive, taking smart decisions, and my intent is always very aggressive. Yep. So for me, I like it that way. तो फील्ड पे भी आप कई बार, हमने सुना आप कहते हैं कि कितने आदमी थे. हाँ जी. हाँ जी. जब मैं रणजी में था तो क्या कहते हैं, जब मैं सिली पॉइंट पे बैठा करता था, जैसे दूसरी टीम की पार्टनरशिप लग गई तो सब लड़के थोड़े शांत हो जाते हैं. तो हंसी मजाक के लिए अब सडनली मैं बहुत तेज चला, मैं बहुत यार आना है सुअर के बच्चों, तो ऐसे चलाता था. तो सारे एकदम से सोचते ये क्या हुआ. तो वहां से फिर मेरा नाम भी गब्बर पड़ा. और तो फिर सब हंसते थे एक बारी में. तो एक मॉल चेंज करने के लिए मैं करा करता था वो सब. How do you rate your performance? Which performance of yours would you rate as best under pressure, Shikhar? Best under pressure? There are so many of them. Any memorable one that you rate as the highest? It's been it's been a long journey for me. Yep. बहुत सारी हैं. जैसे मेरा जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी 2019 वर्ल्ड कप में 25 रन पे मेरा जब अंगूठा टूट गया था, फ्रैक्चर आ गया था, तो मैं 25 रन से 127 रन बनाए. तो आई वाज इन लॉट ऑफ पेन एंड I scored a century. Same thing happened with me in Sri Lanka as well. मेरा शायद कमबैक था या क्या था, मेरा फ्रैक्चर हो गया था. बॉल लगी फील्डिंग करते हुए तो फ्रैक्चर आ गया. फिर उसके बाद मुझे बैटिंग करनी पड़ी. तो टेस्ट मैच था वो, मैंने बैटिंग करी शाम को. फिर मैं अगले दिन सुबह आया तो मेरा पूरा हाथ सूजा हुआ था. फिर मैंने बैटिंग करी. फिर देन आई स्कोर्ड सेंचुरी. एंड there's some moments where I knew that okay, I can get out of the team. I'll be dropped from the team and I have to perform that
time. So a lot of pressure comes that time as well, and then I performed that time as well. So I enjoyed those sort of knocks. Even my test debut one, that is one of my favorite one, because the way I batted in it, the way I was timing the ball, it was I would say pure class. Yeah, absolutely. It was indeed class. And you know, when under pressure, do you always talk to yourself when you're put under that kind of pressure? You pitch might be a dicey one, ball might be swinging, and हाँ जी. you have to score, still keep scoring runs. Do you keep talking to yourself under such kind of situation? क्या बात करते हैं? Yes. Mindset क्या होता है? इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप से ही बात करता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, नॉट योर ओन विक्टिम. And especially when pressure situation gonna come, because see, life is not fair. Life will throw you on your knees, and then how you get up, not just physically but emotionally, that's what matters. And when pressure situation comes, I tell myself that I prepared my best, and whatever I have, I already put in, and I trust myself. I trust my instinct. I trust my plan. I trust my clarity, and I stick to that. And I take that risk that okay, if I fail, I fail. If I go through it, I'll go through it. So I love to be on the edge, not to be in the comfort zone. Is that very important for leader to keep on pushing the envelope and stay out of the comfort zone? जैसा आपने अभी कहा. यप इम्पोर्टेंट, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या डिमांड करती है. मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अब मुझे जैसे T20 वर्ल्ड कप के लिए मेरे को अपने को प्रिपेयर करना था, तो मुझे पता था कि भाई आज से 2 साल पहले कि मेरी स्ट्राइक रेट थोड़ी कम है, तो देन एक मैंने कॉन्शियस एफर्ट मारा कि मेरे को अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ानी है. तो उसमें फिर मैंने अपना रिस्क बढ़ाया, और मेरे को पता था अगर मैं फेल भी हो गया, मैं बाहर भी हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को पता है अगर मैंने को टीम में आना है तो मैं उसी तरीके से आ सकता हूँ. ये हुआ कि मैं टीम में नहीं आया, बट आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी इंटरनली कि जो मैंने प्लान बनाया, मैंने वो रिस्क लिया, एंड आई गॉट सक्सेसफुल एज वेल. मैं ऐसे भी हो सकता था, बाहर भी हो सकता, बट नहीं हुआ, लेकिन मैं कर गया. तो इट टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन, एंड समटाइम यू विल बी इन दैट कंफर्ट जोन एज वेल, एंड समटाइम यू नो इन दैट प्रेशर सिचुएशन यू हैव टू यू नो लिफ्ट योर सॉक्स. और यूजुअली ये हम सबके साथ होता है. ऑल ऑफ अस हैव फेस दिस थिंग इन लाइफ. फॉर्म doesn't remain permanent. Class stays permanent. But when form deceives you, deserts you, how do you cope with that situation? How difficult it is? सी इन माय केस, मेरे का 2-3 इनिंग नहीं होती तो हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है, फॉर्म चली गई. इतनी तो दिल्ली की लाइट नहीं जाती जितनी मेरी फॉर्म चली गई है. तो I just laugh, I just laugh because I like, man, because as a cricketer we know that 2-3 इनिंग इधर उधर जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. And I really don't bother whatever people are saying or whatnot. It doesn't affect me. Neither I have any intent to read about things or anything. I know if I perform well, I'll be, everyone will be writing, or if I perform bad, they'll be doing their job. They'll write whatever they think. And फॉर्म सिर्फ डिपेंड करता है फॉर्म पे भी, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप किस इंटेंसिटी से प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सेल्फ बिलीव क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है. और आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दोज एरियाज. दिल्ली की लाइट के बारे में तो आपने बता दिया. अब पंजाब का थाई फाइव के बारे में बात करें. ये थाई हाँ फाइव जी, की स्टोरी क्या है? कैसे कैसे चालू हुई? हाई फाई की स्टोरी आई गेस मैंने ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया था. मैं जब भी कबड्डी देखता हूँ, आई एंजॉय वाचिंग कबड्डी. तो पंजाब की एक कबड्डी अलग होती है, जो हमारी एक दूसरे स्टार स्पोर्ट के चैनल पे आती है, वो कबड्डी अलग होती है. तो मेरे को बड़ा शौक है दोनों कबड्डी देखने का, जब भी मुझे मौका मिलता है. तो उसमें मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि भाई वो पॉइंट लेके पट पे थापी मारना, और इट्स अ मर्दों वाली फील है. एंड एट द सेम टाइम इट्स ब्यूटीफुल एज वेल, एग्रेसिव at the same time, not hurting anybody's ego or anything. Not that कि मैं उस चीज को, but that's who I am. Like I love being aggressive, but I don't create anything which can, which is not very nice or something. So I felt that it suited me, and because मैंने वो इतना दिल से किया, तो वो इसलिए इस पे इतनी बरकत हुई और इतना सबको पसंद आया. एंड आई फील जब भी मैं बाउंड्री पे जाता हूँ तो हमेशा मुझे लोग यही कहते हैं, थाई फाई कर दो, थाई फाई कर दो. और वो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है वो चीज़.
या हम सब भी वेट करते हैं, आप द मोमेंट यू परफॉर्म इन अ मैच, हम वेट कर रहे हैं कि थाई 5 कब होगा। हाँ जी, हाँ जी, right. एंड इट्स वेरी रेयर कि आपसे कोई कैच ड्रॉप होता है, लेकिन बिकॉज यू आर अ वेरी गुड फील्डर एज वेल, लेकिन जब ड्रॉप होता है तो आप अपने आप को उस समय कहते क्या है? आर यू हार्ड ऑन योरसेल्फ एज वेल ड्रॉप एट हो गया, टाइम्स? ड्रॉप हो गया, गए और तेरी यार गलती हो गई। और क्या, गलती होगी, और फिर कुछ नहीं, उसको सुधारना पड़ता है, क्योंकि वो तो चीज़ जो चली गई, उसको अब मैं डिग करके उस पे परेशान होके मेरी जो प्रेजेंट मोमेंट है वो ख़राब हो जाती है। तो फियर आता है, डर आता है यार, क्योंकि ऑफकोर्स आप टीम के लिए कर रहे होते हो तो आता है यार कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बट यू हैव टू मूव ऑन, यू नो, बिकॉज अदरवाइज इफ यू कीप ऑन hanging on those emotions, that those not going to help you to take another catch. So, and it's all right. People, like, I've dropped so many catches, I've taken so many catches, and it's all right. Yeah, पूरा कर नहीं नहीं, लीजिए। इनिशियली जब आप टीम में आए थे और अब टीम में हैं, तो हाँ जी, इनिशियल डर का रोल क्या था और अब कैसा है? हाउ हाउ डू यू हैंडल इट? क्योंकि फियर एट टाइम्स यू नो डजंट हेल्प यू टू परफॉर्म। absolutely. I've been into those situations so many times. ये भी होता है भाई, बॉलर का भी फियर रहता है, या ऐसा भी फियर रह जाता है कि अब आपको पता है, मेरे को पता था जैसे न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी टेस्ट मैच का, मुझे पता था अगर मैं नहीं अच्छा करूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो मैं बहुत मेहनत करना शुरू हो गया। बट जो जो मेरी इंटरनल एनर्जी थी वो डेस्परेट हो गई थी, क्योंकि भाई एज अ क्रिकेटर हमारा सपना रहता है कि यार हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो हमें वो जगह नहीं छोड़ने देनी, या ये नहीं होना, तो एक अटैचमेंट हो जाती है। तो जब मैं उस एनर्जी में था और मैंने मेहनत भी अच्छी करी, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैं बाहर हो गया। एंड देन आई वाज़ लाइक, यू नो, I was desperate as well. And then I realized that when I was in that desperate energy, I became a bit cribbing as well. And then I said that what is my main priority in my life? It is me being happy. And because कितने सपने हैं मेरे, कितने ड्रीम्स हैं जो मैंने रियलिटी में कन्वर्ट करती हैं। एंड देन ऑल्सो बंदा एक रेस में लगा रहता है, कि और होता रहे, बट एट द सेम टाइम वो खुशी मिस हो जाती है। तो देन आई लाइक कि अब जो मर्जी हो, आई जस्ट स्टे हैप्पी एंड थिंग्स विल कम टू मी ना। मैंने अपने आप को ये बोला कि मैंने कहा इंडिया ने आना होगा तो इंडिया खुद चल के आ जाएगी मेरे पास। Shikhar, tell us something about your, when who were your mentors when you joined Indian team, and now that you have graduated to a seasoned role, uh, how do you mentor the youngsters? मेरा सच कोई पर्टिकुलर मेंटोर नहीं था। नॉन हम्म, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी नहीं, मतलब सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड के नहीं, बाहर? अभी मतलब अब पिछले 5 साल में जैसे मैं शिवानी दीदी है, ब्रह्मा कुमारी इसकी, गौर गोपाल दास जी हैं, तो इन सब से मेरा एक रिलेशन है, प्यार। तो उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा यूट्यूब में जाके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और तो वो चीज़ मैंने काफ़ी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है पिछले 4-5 साल में। एंड दैट हैज़ ब्रॉट लॉट ऑफ चेंज इन मी। I've enhanced like anything, whether it's my consistency, my impact on the game, my aura, my presence, my self belief, everything went, I work on my, I can take my energy to a certain level that I perform at my peak, I'm at my peak, yeah. How crucial it is for you to be strong, mentally as strong as physically? क्योंकि आपने फिजिकल फिटनेस पे भी उतना ही ध्यान दिया जितना मेंटल फिटनेस पे दिया है। हाँ जी, पिछले 5-6 साल में मैंने अपनी मेंटल एस्पेक्ट पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि मैं एक बारी जैसे अपने आप में बैठा हुआ था, तो ये होता है क्योंकि बंदा क्या होता है जब रेस में रहता है, कि भाई अब जैसे मेरे टीममेट्स हैं, वो मेरे टीममेट्स भी एट द सेम टाइम मेरे कॉम्पिटिटर भी हैं, तो फिर बंदा कंपेयर भी करता है कि यार दूसरे की सेंचुरी इतनी होगी या मेरी इतनी है, भगवान उसका अच्छा करो, मेरा उससे भी अच्छा करो। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में काफ़ी रहती थी। आई वाज लाइक कि मैन, आई वांट टू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट रेस, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट रेस एनीमोर, कि भाई क्योंकि आई एम लिविंग माई ड्रीम, आई एम लिविंग माई ड्रीम। सो देन आई रियलाइज्ड through spirituality how to change my mindset and everything, and it did wonders for me. Absolutely. So controlling emotion, and we have seen that you over the last few years, you are enjoying your game. You're not there to prove a point to somebody. No, no, no. I mean, yes, absolutely. I'm not here to prove a point, and I'm really enjoying my game. I'm loving the journey. अभी मैंने जितना भी मांगा था उससे काफ़ी ज़्यादा ही मेरी मालिक ने मेरी झोली भरी हुई है। तो आई
I live in abundance, and I attract abundance as well. Yeah, absolutely. And what is one thing that you tell to the youngsters in the team, outside the team, कि अपने Yeah, ऊपर emotional अत्याचार मत करो, right? What is yeah. one piece of advice that you give to all of them? One piece of advice which I give to youngsters, क्योंकि क्या होता है, अभी अब youngsters उनको वो बड़े जोश है कि भाई अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है. So I always tell them that use law of attraction, use nature power, how to use it. I explain to them कि कैसे करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया या गलतियाँ भी करी हैं, वो मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये करके आप और अपने आप को एनहेंस कर सकते हो और बेटर कर सकते हो. और कभी अगर कोई स्किल का भी होता है तो मैं उसमें भी ज़रूर उनको अपना इनपुट ज़रूर देता हूँ. बट आई ऑलवेज मोस्टली आई टीच देम हाउ टू और शेयर देम कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड सेट. इट्स बिकॉज क्या होता है लाइफ में, आपकी एनर्जी पहले जाती है, फिजिकल चीज़ बाद में जाती है. आपके पास जितना मर्जी बड़ा स्किल हो, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो वो स्किल आप की जो हुनर है पूरा निखार नहीं सकते, उसको निकाल नहीं सकते. एक चीज जो आपको और डिस्टिंग्विश करती है कि आप एक अच्छे सिंगर भी हैं, और हाँ, हमें नहीं पता नहीं. चला कि आप नुसरत फतेह अली खान साहब के बहुत बड़े फैन हैं. हाँ जी, हाँ, नुसरत फतेह अली खान साहब तो खैर उस्ताद लोग हैं. और मैं सिंगर अच्छा नहीं हूँ बिल्कुल भी. और क्या कहते हैं, बट आई एंजॉय लिसनिंग सूफी म्यूज़िक, गज़ल्स, हिंदी म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक. पंजाबी बहुत सुनता हूँ मैं. तो ये सारे. और या सिंगर नहीं, आई प्ले फ्लूट एज वेल, सो मैं बांसुरी भी बजाता हूँ. कोई फेवरेट आपका गाना जो आप 2 लाइन हमारे लिए गुनगुनाना चाहेंगे? 2 लाइन गुनगुनाना, जो अभी आजकल जो मैं अपनी बांसुरी पे सीख रहा हूँ गज़ल, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महके. ग्रेट शिखर, आपकी खुशबू से अब लगता है पंजाब किंग्स के अलग ही इस बार का परफॉर्मेंस रहेगा. मालिक की मेरे से ज़रूर. Thanks a lot, Shikhar. It was great having you. All the best for the IPL. थैंक यू. Hope everyone has enjoyed this conversation. Forbes India Leadership Awards.